Good morning students, myself V.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Continue my class after some times. Now for class 12, now chapter number 3, matrices. Matrices actually is the separate branch of a mathematics. It is also operation like a plus, minus, into and division. Use the matrices just like operations of the sum, solve the very high level problems. Okay student, so now first we find the order of a matrix. Write the matrix in the, use the capital alphabet and in this brackets. Suppose we write A1, A2, A3, A4, A5 and A6, A7, A8 and A9. Now this number, these are called the rows. Similarly, it is also rows, it is also row. And this part is called the column. It is also column, it is also column. And order means just order. That means first write the number of rows. How many rows? There are 3 rows. And how many columns? So 1, 2 and 3 is column. So 3 into 3 is the order of a matrix. Now for example, suppose they are given, first is the given that the men workers, and example number 1, women workers. So they are given is the first and second and third. The given is the men workers are 30 and 25 and 27. It is the workers, number of workers. And women workers is given 25 to 31 and 26. And these are right in the form of matrix. It's very simple. Suppose this matrix denoted by A. Just write the number 30, 25, 27, 25, 31 and 26. Is it understood? It's very simple. So these are the first number of the worker of women, and it is the worker of men, and it is the worker of women. 30, 25 and 27. So it is the row and it is the column. So what is the order? Its order is, first add the number of row 1, 2 and 3. So 3 into, and column is 2. So 3 into 2. 3 into 2 is the order. And just product of this order 3 into 2 is the 6. That means there are 6 total elements. These elements 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So these are the 6 elements of in this matrix. So first we find out the order of the matrix. Now also we construct the matrix when given its order. Suppose one matrix, the order is given 3 into 2. Example number 2. And given that whose the elements are given by, each elements are given Aij is equal to, given that 1 upon 2 and mod of I minus 3j and mod. Mod means you take the positive value, not a negative. I think, okay, in this. Now Ij means I is the number of order and j is the number of column. So 3 into 2, that means they take first 3 and then 2. So 3, first find the matrix. This matrix write in this form.
3 into 2. First thing, A11, A12, A13, because 3 are the column, so and 2 is the only column, so only write the 1 2, and then 1 2 1 and 2 2, and then 3 1 and 3 2. एक बार चेक करते हैं इसको, वापस से समझाता हूं मैं आपको. 3 rows 1 2 3 and 2 columns 1 2. आपको चेक क्या करना है, जब आप फर्स्ट रो पे चल रहे हो तो ये फर्स्ट नंबर 1 रहेगा और ये नंबरिंग चलेगा 1 2 3 4 5 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34. वेरी सिंपल. सेकंड नंबर ले रहे हैं अपन, सेकंड रो, तो सेकंड नंबर में आ जाएगा सेकंड रो, लेकिन कॉलम आपका फर्स्ट चल रहा है. देखो कॉलम फर्स्ट चल रहा है 1 1 1 21 22 23 24 25. इट्स वेरी सिंपल. ऐसे ही ये थर्ड, दैट मीन्स आपका ये थर्ड रो है, लेकिन कॉलम आपका वापस 1 ही है, इसलिए यहाँ 1 ही है और ये 2 ही है. अब आपको ये एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं. अब एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 1, दैट मीन्स आपको यहाँ पर एक एक एलिमेंट्स आपको फाइंड करना होगा. A 1 1 मीन्स पुट द I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 1. ये आपको पुट करना होगा और जो आपको वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो पुट I इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू J इक्वल टू 1, तो आपको 3 मिलेगा, and 1 upon 2 into is minus 2 is plus 2, that means is equal to 1. ये आपने फर्स्ट फाइंड आउट कर लिया. सेकंड 1 2 is equal to वापस हाफ एंड वापस से आज इस बार आपको I 1 ही पुट करना होगा और माइनस 3 इंटू 2, इस बार आपको J की जगह आपको 2 पुट करना होगा. तो पुट J इक्वल टू 2 इंटू 2, नाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. 1 माइनस 3 टू 2 6, माइनस कीजिए 1 अपॉन 2 5. मॉड का साइन है इसलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव नंबर की जगह मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ. यस, तो आपको मिला क्या 5, तो इज इक्वल टू 5 अपॉन 2. आपको ये नंबर मिल गया, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, और यहाँ अपन लिखते जाएंगे मैट्रिक्स. ये फाइनल आपका होगा आंसर. नेक्स्ट फाइंड कीजिए A21 1 अपॉन 2 मॉड. इस बार आपको I की जगह 2 पुट करना है, तो 2 माइनस 3 इंटू J इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज 2 और इंटू 2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा. ऐसे करते करते आप ये फाइंड आउट कर लो, और मैं एक बार इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. आप लोग समझ तो गए होंगे, तो इसको इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो और ये आपका आंसर आएगा. जैसे अपन ने फर्स्ट फाइंड आउट किया था, फर्स्ट आपका आंसर था 1 एंड सेकेंड आपका आंसर जो था, आपका आंसर था 5.2. ये मैंने 5/2 आपको फाइंड आउट करके दे दिया. और नेक्स्ट अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉरी नॉट 1/2, 5/2, सॉरी 5/2 और 1/2. नेक्स्ट आएगा 1/2 जो अपन ने फाइंड आउट किया है. और नेक्स्ट आपका आएगा 21 में 1/2 एंड देन I is 2 minus 3 into 1, तो ये हो गया 3 और ये आएगा आपका 2/2 इज इक्वल टू 1. तो ये 1/2, सॉरी ये 1/2 आएगा बिल्कुल पॉजिटिव. तो ये 1/2 एंड देन 2 देन 0 एंड देन 3/2. ये आपका आंसर आ गया. तो इस फॉर्म में जब गिवन हो मैट्रिक्स I और J, so where I means put the value of row and J means put the value of column. तो बहुत ही इजीली फर्स्ट यू राइट देयर, जो भी ऑर्डर आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप पहले ये मैट्रिक्स लिख लीजिए. उसके बेसिस पे आप एक एक एलिमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करके आप मैट्रिक्स को इजीली
आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट हमने बात कर ली बेसिकली डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, और नाउ सेकेंड इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, एंड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर यू कैन कैलकुलेट द एनी मैट्रिसेस। सेकेंड हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। अब यहाँ पर सिंपली जो अपन डेफिनेशन बात करते हैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। सो फर्स्ट हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स जिसपे एक ही कॉलम हो, रो मैट्रिक्स जिसपे एक ही रो हो। इसमें सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स मीन नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ओके, एंड डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल कहाँ बनेगा? जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डायगोनल बनेगा, अदरवाइज वो डायगोनल नहीं बनेगा। आप सिंपली बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं ये मैट्रिक्स बनाता हूँ तभी तो डायगोनल बनेगा, अदरवाइज डायगोनल ही नहीं बनेगा। इसको अपन डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ होगा। अगर मैं खाली ये मैट्रिक्स लिखता हूँ तो उसमें डायगोनल नहीं बनेगा। ओके, तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डायगोनल मैट्रिक्स पुट कर सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है। स्केलर मैट्रिक्स का मीनिंग यहाँ पर, स्केलर मैट्रिक्स का मीनिंग यहाँ पर ये होगा कि जिसके डायगोनल मैट्रिक्स सेम हो, 2 2 2, और अदर मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली 0 हो। ये स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल मैट्रिक्स तो सेम हो गए और बाकी के मैट्रिक्स एलिमेंट जो हैं वो 0 होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस सिंपल आप समझ जाओ कि ये जो सेम एलिमेंट है, अगर ये 1 के इक्वल हो गए 1 0 0 1, अगर ये सेम है, इसका डायगोनल बन रहा है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है? 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग हो गया दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर इक्वल है तभी वो इक्वलिटी होगी, इन दोनों में इक्वलिटी होगी, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे ये तो आप भी समझ सकते हो। अगर मैं दो मैट्रिक्स को इक्वल करूं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं x y एंड p q इक्वल टू 3 2 7 4। एक बात बताइए, अगर इसका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो इक्वल कैसे होंगे? सबसे पहले दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होगी जब उनका ऑर्डर इक्वल होगा, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। एक बात। दूसरी बात, अब ये दोनों इक्वल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। x जो है वो 3 के इक्वल होगा, y जो है वो 2 के इक्वल होगा, p इज इक्वल टू 7, q इज इक्वल टू 4। ये सब इक्वल होंगे तभी तो वो इक्वल्स होंगे, अदरवाइज वो इक्वल ही नहीं होंगे। तो यहां पर इनके बेसिस पर हम फाइनली दो मैट्रिक्स को जब इक्वल करते हैं तो अननोन जो कांस्टेंट, अननोन जो वेरिएबल्स हैं उनको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इज द सॉल्व the sum problems in next exercise. Okay student, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक तो बात करेंगे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सेकेंड हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, थर्ड हम बात करेंगे आइडेंटिटी, और ये दो इक्वलिटी उसमें टाइप्स में आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी का आपको ध्यान रखना है और एक डायगोनल का आपको ध्यान रखना है। डायगोनल्स का मीनिंग यहाँ पे हो गया डायगोनल्स के एलिमेंट्स सभी इक्वल होने चाहिए और बाकी के 0। आइडेंटिटी में यहाँ पर जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स है वो एक वन डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 1, तो अदर ऑटोमेटिकली 0 हो गए। अब हम बात करते हैं वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की। सपोज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, x plus 3, z plus 4, 2y minus 7, minus 6, a minus 1, 0, b minus 3, minus 21 and 0.
this matrix is equal to suppose is equal to 0, 6, 3y minus 2 minus 6 minus 3 2c plus 2 2b plus 4 minus 21 and 0. Find the values of a, b, c, x, y, z. Just find the value of in this x, y, z, a, b, c. Calculate these the unknown variables. Very simple. If these two matrices are equal, so first you say very simple, x plus 3 is equal to 0. So what is x equal to? Minus 3. ये आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. नेक्स्ट z plus 4. z plus 4 is equal to 6. So z equal to 6 minus 4 is equal to 2. ये आपने फाइंड आउट कर लिया. z 2y minus 7. 2y minus 7 is equal to 3y minus 2. कर लेते हैं इसको भी सॉल्व. 3y को इधर शिफ्ट करें तो माइनस वाई एंड इज इक्वल टू माइनस 7 को उधर शिफ्ट कर दें तो प्लस 7 एंड माइनस 2 आई थिंक प्लस 5. सो y इज इक्वल टू माइनस 5. ये आपने x एंड z एंड y ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट की. अब आपको a b c फाइंड आउट करना है तो माइनस 6 माइनस इज ऑलरेडी इक्वल है. a माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3. a minus 1 is equal to minus 3. So a equal to minus 2. a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. अब b और c बच गया. 0 is equal to 2c plus 2 equal to 0. So 2c equal to minus 2. So c equal to minus 1. ये c भी आ गया आपके पास. बचता क्या है? b बच जाता है. b आप ले लीजिए ये ना. b minus 3. So b minus 3 is equal to 2b plus 4. इसको इधर शिफ्ट करिए. माइनस b is equal to इसको इधर शिफ्ट करिए प्लस 7. So b is equal to minus 7. It is the answer. एक बार अपना आंसर चेक कर लेते हैं अपना. a is minus 2 is correct. b is minus 7 is correct. c is minus 1 is correct. x is minus 3. And y is minus 5 and z equal to 2 is correct. तो मेरा कहने का यहाँ मीनिंग ये है. एक्सरसाइज नंबर 3.1. एक्सरसाइज 3.1 इट इज द कंप्लीट. ये आपको करना है कंप्लीट. मैट्रिसेस डेफिनेशन कंप्लीट हो गया अपना. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ये आपका क्लियर हो गया. नेक्स्ट, इफ एनी नंबर आई और जे में गिवन हो तो आप एक मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने डिस्कस कर लिया. एंड इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस ये अपने इक्वलिटी का. इसके बेसिस पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.1. तो 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करो. उसके बाद में हम आगे और बढ़ते हैं और आगे और मैट्रिक्स को आगे अपन डिस्कस करते हैं. ओके स्टूडेंट. ओके, थैंक यू एंड गुड डे.